Speaking election commissioner, constitutional body, Article 324, first time consultative process to appoint the election commissioner has been used. Supreme Court has given direction in 2022 regarding the appointment of the election commission. Supreme Court said that Chief Justice should also be there in the appointment of election commission. But in 2023, the bill has been passed by the parliament, which establishes the committee comprising of Prime Minister, Leader of Opposition of Lok Sabha, and Cabinet Minister nominated by the Prime Minister. All these three members will appoint the Election Commission of India. The selection will be made from the 5 names shortlisted by the screening panel headed by the Law Ministry and comprising of 2 Union Secretaries. So, in this direction, the bill has been passed. It has been made enacted into December 2023. It is different to what Supreme Court has given direction. So, Article 324 mentions appointment being subject to to a law by Parliament. Without such a law, the President has the constitutional power to appoint them. Measuring Vikas. How will we know that Bharat is Viksit? There are many metrics. Viksit Bharat. Viksit Bharat, equity for all. Then there should be equal, there were more representation of the vulnerable section in society, in the higher judiciary, bureaucracy, etc. Ease of lifestyle should be promoted rather than developed or developing economy bias in my mind, in our mind. Then third would be We can if also we are say moving towards the बोलो. I'm saying we can also say it will be a just society. Yes, just society, self-sufficiency, Atmanirbhar Bharat. If we are meeting the target of the climate mitigation target by 2050 and 2070, Panchamrit, carbon neutral, becoming carbon neutral, then we can say that it is India is becoming a Viksit Bharat. Developed economy does not mean Viksit Bharat. It should be related to the lifestyle, healthcare, because every year we are losing the opportunity of the demographic dividend. In next 20 years, our demographic dividend, that is 29 years of mean age, will increase to 49 years, 45 years. This will have a repercussion on the pension, on the labor market, etc. That is why we need more and more policy for the just society, जैसे stock में आप investment, insurance for all, आगे आगे पढ़ेंगे. IRDAI have given direction to the panchayat that everyone should be insured in health and life insurance. तो एक एग्जांपल अब कैसे बनेगी इसी बात. We can say कि जो dichotomy है कि we are saying per capita income increase हो रही है, there is more FDI, but per capita income increase होने की वजह से हो क्या रहा है, sedentary lifestyle को और ज्यादा promotion हो रहा है, तो जिसकी वजह से non communicable diseases increase हो रहे हैं. तो that is not the idea behind Viksit Bharat. Yes. Equity concern in banning fossil fuel extraction. Equity concern. So when we talk about the fossil fuel extraction, we discuss about the common but differentiate responsibility. Everyone has a common responsibility towards the climate change, but each one have differentiate responsibility. Some countries must do more, for example, developed countries, because they are historically emitting the carbon emission. So they should do more for that. And rest of the country, for example, developing and underdeveloped countries, they should mitigate according to their own status. So national determined contribution under the Paris Climate Act, we talked about each country has to set their own target under national determined contribution, and after 3 years, 3 to 4 years, they will be rechecked, they will be reviewed by the primary Paris Climate Group. तो इसमें इक्विटी कंसर्न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल
Most of the country are heavy dependent on the revenues and employment in the fossil fuel sector, Saudi Arabia, UAE, etc. It presents a serious difficulty in transitioning away from fossil fuel. With country like India, most of the energy security, energy is imported. For example, 85% of our energy is imported from outside. We are dependent 40% of LNG from Qatar and more than 85% of oil from Middle East, Saudi Arabia, Iraq, Russia, etc. For that, India is diversifying its energy stock because further it will take time. That is why equity is important, equity concern. देन आते हैं एंड दूसरे। ये भी बात कर रहे हैं कि एकदम से ही हम ट्रांजिशन नहीं कर सकते हैं इंडिया में जो ग्राउंड रियलिटीज हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है कि 3.6 मिलियन पीपल जो हैं इन 159 डिस्ट्रिक्ट्स, दे आर रूटेड इन दी फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी ओनली। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको उधर से ही जॉब मिल रहा है। तो ट्रांजिशन के लिए क्रिएशन भी जरूरी है ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का। For creating such alternative economies, India is also investing in more coal industry, refinement के लिए, such that in next 20 years, जो new coal industry जाएगा, that will be less polluting than the existing coal industry. उसमें coal gasification जैसे new technology use होंगे and grey hydrogen उससे produce कर सकते हैं. That is why the new coal technology will be a part of the just transition from existing fossil fuel towards the new energy source. For example, methane, green hydrogen, solar, wind, geothermal, nuclear, etc. by 2070. All that requires a fund. Fund कैसे होगा जनरेशन? तो हर कंट्री के लिए अलग अपॉर्चुनिटी. फॉर एग्जांपल, यूरोपियन यूनियन इज टॉकिंग अबाउट comprehensive border CBAM adjustment mechanism, carbon border adjustment mechanism. This is a tax against the developing and underdeveloped countries. कार्बन मार्केट के बात होता है, कार्बन क्रेडिट, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल और अभी प्लायस प्रोटोकॉल. तो unused carbon credit can also be used. Green bond market can also be used. Green climate finance can be used for establishing such technologies in India. Regarding the scheduled caste groups, CGI led bench, 7-judge bench, constitution bench. Any decision, constitutional decision taken by the Supreme Court is above 5-judge bench. 5 के साथ ही होता है constitutional bench. It is called as constitutional bench. It has said that can't treat scheduled caste as homogeneous group because उसमें से कर्पूरी ठाकुर जी को मिला भारत रत्न, वो बोलते हैं पिछड़े वर्ग में भी अति पिछड़े. तो इसमें भी शेड्यूल क्लास ग्रुप cannot be treated as a homogeneous group because some will be more underprivileged, some will be privileged. तो अब वहां पर भी आप क्रीमी लेयर किस कॉन्सेप्ट को ला सकते हैं. अंडर आर्टिकल 341 any of the groups and castes can be included into scheduled caste list. 341 में the president has a power. The state government can only recommend. The parliament has the power to amend the article 341 to include more scheduled caste into it. Heterogeneous pre-existing occupation, social strata, social indicator backwardness and development है, इसलिए you cannot treat whole caste, several castes, hundreds of 1000 caste into SC. कुछ हो सकता है कि ज्यादा बेनिफिट ले सके होंगे एजुकेशन के, तो उनको जनरल क्लास किया जा सकता है. तो दिस इज अ ओरल जजमेंट. तो जब रिटन जजमेंट आएगा तो वी कैन डिस्कस इन डिटेल. सब कैटेगराइजेशन ऑफ द कास्ट इज इंपॉर्टेंट. It will be not violation of right to equality. Duty of the state
The state can identify and recommend a backward group. The parliament enacts the legislation. So why subcategorization is important? Because in order to aid the weakest of the weak, अति पिछड़े वर्ग. As Pakistan boasts short history of its fraught experiment with democracy. तो डिफरेंट टाइप्स लीडर्स आए 1940s के बाद से. अयूब खान, जनरल अयूब खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, ही वाज president in 1970s, People's Pakistan People's Party. After the revolution in Bengal and independence of Bangladesh, there was again shift from the important leaders, important democratic elected leaders to military dictatorship. जियाउल हक, उसके बाद फिर परवेज मुशर्रफ 1999 के बाद से ओवरलॉर्ड सिस्टम. फिर नवाज शरीफ, आफ्टर दैट पीटीआई इमरान खान. तो currently election is going on in Pakistan. Election in Pakistan is important because of the two reasons. It is connected to the South Asia. It connects South Asia to Middle East, important gateway. Second, whole axis of separatism, terrorism, etc. in Afghanistan, then SCO region, then Balochistan region in Pakistan is concerned with the prosperity and betterment of the Southeast Asia. That is why peace should be there. तो नया जो इलेक्शन आएंगे, गवर्नमेंट आएंगे, हो सकता है कि इंडिया will take a step towards it, normalization of the relationship between the two countries. Strike a fine balance, have a just civil code. Law Commission of India should aim to eliminate only those practices that do not meet the benchmark by the Constitution of India. Autonomy versus authority. This questions the authority of the government to interfere into the religious autonomy mandate given by the Article 25, 26, 27 of the Indian Constitution. There are also regional differences with respect to the same custom. तो रीजनल डिफरेंसेस भी है, इवन कम्युनिटी डिफरेंसेस. मुस्लिम मैरिज आज के लिए अलग है, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, पारसीज, बुद्धिस्ट एक्सेट्रा. तो इट इज टॉकिंग अबाउट कि वी हैव टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी, but it should not be considered as homogenizing the electrification of the identity, because all the communities are not the same. They have their unique identities and diverse viewpoint regarding the custom and tradition. That is why diversity is to be upheld. At the same time, हमें ऐसा काम करना चाहिए that is promoting the integrative approach. Right to cultural relativism. Relativism अपने अपने कल्चर के अपने अपने कस्टम होगा. Cannot justify the continuation of unjust and discriminating personal law. For example, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि डाउरी शुड बी लीगल बिकॉज हमारा मानता है हिंदू धर्म में, या फिर ट्रिपल तलाक इज लीगल बिकॉज हम लोग मानते हैं. तो राइट टू कल्चर रिलेटिविज्म, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर रिलेटिव है, cannot justify continuation unjust law, discriminating personal law. It has to be seen from the lens of the constitutional morality. That is why there has to be a fine balance between uniformity and diversity. तो वन यूनिफॉर्म लॉ के जगह ऐसा एक काम कर सकते हैं जो एक अकोमोडेटिव स्टेप रहे, टॉलरेंस बेस्ड रहे. जैसे
देयर शुड बी, एक एग्जांपल दिया हुआ है 21st लॉ कमीशन 2015-18 ने बोले कि दे टॉक्ड अबाउट फेवरिंग इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन इन ईच पर्सनल लॉ रादर देन मेकिंग ऑल द पर्सनल लॉ सेम। हर एक पर्सनल लॉ के अंदर में विमेन मेन के हिसाब से इक्वालिटी क्रिएट करे रादर देन एमिंग फॉर इक्वालिटी बिटवीन द कम्युनिटी। तो उससे एक जस्ट कोड डेवलप हो सकता है। इट विल बी मोर एंड मोर अकोमोडेटिव इन नेचर देन यूनिफॉर्म सिविल कोड। यहाँ पे बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विटी की बात हो रही है। बोल सकते हैं। एंड ये जो सिविल कोड्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं? क्या हम ग्राउंड रियलिटी पे ऐसे ही वर्क कर पा रहे हैं? सिविल कोड, तभी सिविल कोड है नहीं इंडिया में। इट इज ए पर्सनल लॉ कोड फॉर ईच एंड एवरी कम्युनिटी। कुछ जगह में, फॉर एग्जाम्पल गोवा में और अभी उत्तराखंड में परसों ही इट वॉज इनेक्टेड। तो ग्राउंड रियलिटीज में देखा जाए तो कैसे करें, क्योंकि हर एक कम्युनिटीज के डिफरेंट फैमिली कोड है। किसी के लिए फैमिली कोड है, किसी के लिए शरिया कोड है। तो जब इंटर कम्युनिटी मैरिज होता है, इट इज मोस्टली रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, क्योंकि देर इफ देर इज अ कन्वर्जन तो उनके ऊपर दूसरे वाले लॉ लगेंगे। तो दोनों लॉ बहुत डिफरेंट है, डाइवर्स, तभी तो मॉरल रिलेटिविज्म का, कल्चर रिलेटिविज्म कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि आप जस्टिफाई नहीं कर सकते जो भी ओवर आर्किंग प्रैक्टिसेस है, उसको आपको इक्विटी और इक्वालिटी के बेसिस से देखना होगा, लेंस के बेसिस पर अंडर आर्टिकल 14, 16 और 20, राइट टू डिग्निटी। ग्राउंड लेवल में और भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको एक और मेजर जो इसमें एडिशन है कि देयर शुड बी अ टाइम फ्रेम, कि आप अगले 5 साल के अंदर में एवरी पर्सनल लॉ कैन बी मोल्डेड टू बिकम अ मॉडल लॉ। तो मॉडल सिविल, जैसे हर एक बोलते हैं ना मॉडल एपीएमसी एक्ट पास बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसे मॉडल यूसीसी शुड बी पास्ड। ईच स्टेट should have been should be given adequate autonomy with the creation of the UCC on the basis of that। फिर हर 5 साल 6 साल में आप धीरे धीरे उसको इंटीग्रेटिव अप्रोच से चेंज कर सकते हो हर एक लॉ, रादर देन यूजिंग टॉप डाउन मैकेनिज्म कि आप एक ही बार कर दो यूसीसी। तो इसे इम्प्लीमेंटेशन इशू हो सकता है इन द सिविल कोड विथ रिगार्डिंग टू इनहेरिटेंस राइट, कस्टम, रिलीजियस, सब चीजें। तो टाइम फ्रेम देना चाहिए। जब फॉर्म लॉ पास नहीं हो पाया तो ये बहुत दिक्कत हुआ एक ही बार में करने में। एंड पॉलिटिकल विल कैसे इम्पैक्ट करेगी इसको? पॉलिटिकल विल में अगर इंडिया में बोला जाए तो देर आर टू, ऑल सपोर्ट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, बट कुछ बोलते हैं कि इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू पार्लियामेंट और डायरेक्टली होना चाहिए। कुछ बोलते हैं कि द कम्युनिटी शुड टेक इनिशिएटिव विद द क्रिएशन ऑफ यूसीसी। जब कम्युनिटी रेडी रहेंगे तभी करेंगे। तो पहले वाले बोलते हैं, जो राइट और लेफ्ट का आता है कॉन्सेप्ट, तो राइट वाले बोलते हैं कि इतने साल हो गए अभी तक कम्युनिटी रेडी ही नहीं है। लेफ्ट बोलते हैं कि कम्युनिटी रेडी तभी होंगे जब जॉब क्रिएशन होगा, मॉडर्निटी आएगा सोसाइटी के अंदर। तो एक दोनों पक्ष है। तो rather than implementing यूसीसी, मेरा स्टैंड है कि स्टेट शुड बी गिवन द प्राइमेसी। एक मॉडल यूसीसी कोड बनाना चाहिए बाय द सेंटर। अकॉर्डिंग टू दैट सेंटर द स्टेट कैन बी गिवन प्राइमेसी ओवर द, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड यूसीसी। हर एक स्टेट अपने अपने बनाए, अपने लोकल ट्रेडिशन। हो सकता है ना कि कुछ ट्राइबल्स होंगे जो बहुत कम नंबर में होंगे, उनका अपना पर्सनल लॉ होगा। तो पार्लियामेंट उसको भी कैसे क्रेटर कर सकता है? नहीं कर सकता। हर एक ट्राइबल, हर एक ब्लॉक के अंदर डिफरेंट वे कस्टम हो सकता है। तो स्टेट ही कर सकता है और अच्छे तरीके से। तो इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड हिट a new record in 2023, growth in trade to $136.2 billion, but the import is increasing to $100 billion ज्यादा। We are mostly dependent on China on API, medical import, semiconductor and ऑल्सो, silicon wafer, सब चीज में। यस। एंड तो इंडिया इसलिए जो उसको मेजर
करता है दैट इंक्लूड्स आयरन और या फिर रिफाइंड पेट्रोलियम रॉ प्रोडक्ट्स। मटेरियल्स करते हैं सिर्फ यस। अधिकतर। तो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी से आप कर सकते हैं। PLA स्कीम है, ऑलरेडी वी आर बिकमिंग सेल्फ रिलायंस इन सेवरल सेक्टर्स। ऐसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वी आर एक्सपोर्टर नो, टॉय मैन्युफैक्चरिंग वी आर एक्सपोर्टर रादर देन इम्पोर्टर। तो ऐसे यहाँ हर पे एक स्पेसिफिक एक्चुअली फील्ड में कर सकते बोले कौशिक कि हैं। जैसे इंडिया, हम मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंस इंडिया प्रमोट कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं चाइनीज इंपोर्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स जो आ रहे हैं वो चाइना से ही आ रहे हैं। तो अभी आपने जैसे बोला मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, तो हम उसको एक्चुअल सेंस में मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, एक तरीके से वो इंडिया में असेंबल हो रहा है बस। हाँ, तो सबको जो स्टार्टिंग होता है कोई भी कंट्री का, फॉर एग्जाम्पल जापान हैव असेंबल्ड मेनी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ऑफ US इन 1950s ड्यूरिंग द कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, तभी जापान लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। फिर जापान ने अपने पूरे मैन्युफैक्चरिंग जो असेंबलिंग पार्ट है वो दे दिया चाइना को 1980s में। तो चाइना फिर पिंग पोंग डिप्लोमेसी के बाद चाइना खुला। डियो जिनपिंग उनके अंडर में जो रिफॉर्मिस्ट पोजीशन था विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स, वो भी फिर वही काम किया। तो इंडिया भी कर सकता है धीरे धीरे। तो शिफ्ट होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली IPR में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। IPR के लिए आपको एग्जिस्टिंग ब्रेन चाहिए, ब्रेन पावर चाहिए, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जो हम लोग कल बात कर रहे थे NIRF, और जैसे 50,000 करोड़ कॉर्पस हैज बीन सेट असाइड फॉर द रिसर्च इन द डीप टेक्नोलॉजी। तो उसमें अब अभी हो रहा है, तो वी कैन नॉट डायरेक्टली जंप इनटू इट। इसलिए जो एप्पल का प्रोडक्ट भी आता है डिजाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, लेकिन मेड इन चाइना या मेड इन इंडिया। तो डिजाइनिंग पार्ट है वो नहीं कर सकते अभी, कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं कर सकते। अगले 10 साल 15 साल में देख सकते हैं उसको। यस। एंड यहाँ पे we can see कि जो ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशनशिप है इंडिया और चाइना का, दैट इज गुड। बट अगर ओवरऑल रिलेशनशिप की बात करें तो हाउ विल यू डिस्क्राइब इट इन वन वर्ड, इंडिया एंड चाइनाज रिलेशन? बॉर्डर सेंसिटिविटी बोल सकते हैं एक लाइन की। ओवर द इयर्स ट्रेडिंग भी हो ही रहा है, देर इज नो सच क्लासेस नाउ, बट देर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट नहीं बोल सकते, देर इज मिसट्रस्ट भी नहीं बोल सकते, reduced ट्रस्ट बिटवीन टू कंट्रीज रिगार्डिंग द बॉर्डर मैनेजमेंट। रोड मैप फॉर फिजिकल कंसोलिडेशन। In the budget, there has been no proposal for the changes in taxes rate, direct or indirect taxes. There is a focus on capital expenditure by the union government, and there is also a reduction in the subsidies. जैसे हम डिस्कस किए थे कि 2,50,000, 2,70,000, it has been slightly reduced. This showcases the fiscal correction and consolidation. कि आप एक्सपेंडिचर कैपिटल में कर रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर एग्जाम्पल सब्सिडीज को रिड्यूस कर रहे हो। तो FRBM इज टॉकिंग अबाउट दैट डेट टू GDP रेशियो परसेंटेज जो कम होना चाहिए, 3% होना चाहिए, एंड नॉट 4.5%, जो करेंटली 4.5% से ज्यादा है। एंड इफ यू टॉक अबाउट डिक्रीज इन द फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स, तो अगर फिस्कल डेफिसिट डिक्रीज हो रहा है तो लॉन्गर रन में इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका? फिजिकल डेफिसिट डिक्रीज करेगा तो लॉन्गर रन में आई थिंक ग्रोथ दे विल बी स्लोअर मोर। हुई। नहीं, ग्रोथ श्योर नहीं होगा, डिपेंड करता है, जरूरी भी नहीं है। अगर आपका फिजिकल रेवेन्यू अगर ज्यादा है तो डेफिसिट, ग्रोथ श्योर नहीं हो सकता ना। फिजिकल डेफिसिट मैक्रो कम हुआ तो इकोनॉमिक। फिजिकल कॉन्स्ट होने से इंडिया का जो बॉन्ड रेटिंग है वो बढ़ सकता है, तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, FPI FDI का। और दूसरा है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ओवरऑल, क्योंकि स्टेट बोरिंग बहुत ज्यादा रहता है, तो फिजिकल डेफिसिट अगर कम होता है तो स्टेट बोरिंग कम होगा तो डेप्रिसिएशन रुपीज कम हो। मानसी यू कैन ऐड। एंड इंटरेस्ट रेट्स लोअर हो जाएंगे। ठीक एंड है, अगर इन्फ्लेशन भी कम हो सकती है। और जॉब लॉसेस, तो जॉब्स को नहीं, जॉब कैसे लॉसेस नहीं हो सकते, नहीं होगा? जरूरी नहीं है जॉब लॉस होगा, उससे हाँ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं क्योंकि है हाँ फिजिकल डायरेक्ट डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे कि आप रेवेन्यू कितने उठा रहे हो और कितने एक्सपेंस कर रहे हो, इसी से मतलब है। अगर हो सकता है ना, पॉसिबल है कि रेवेन्यू ज्यादा हो रहा हो तो फिजिकल डेफिसिट नहीं होगा, फिजिकल सरप्लस हो गया,
कोई कंट्री फिस्कल सरप्लस होता है, जैसे गुजरात या कोई स्टेट था जो फिस्कल सरप्लस था, तो रेवेन्यू ज्यादा ही उड़ीसा थे। है, उड़ीसा उड़ीसा, इज फिस्कल हाँ सरप्लस। ठीक है, फिस्कल सरप्लस तो रेवेन्यू ज्यादा है, तो उसमें जॉब क्रिएशन कैसे नहीं हो सकता है? हो ही सकता है। तो फिस्कल डेफिसिट डायरेक्टली नॉट कनेक्टेड टू द जॉब क्रिएशन, इट इज कनेक्टेड टू द कि स्टेट बोरोइंग, स्टेट जब बोरो कर सेंटर बोरो करते हैं फ्रॉम द मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट ज्यादा करते हैं क्योंकि ईसीबी तो बहुत कम होता है इंडिया में, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो उसमें जब बोरोइंग करते हो तो ज्यादा बोरोइंग करेंगे तो आपका बॉन्ड रेटिंग घटेगा, फिर आपका डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज होगा, तो कम बोरोइंग करना पड़ेगा तो उल्टा होगा उसका। बस यही बोल सकते हैं, लिक्विडिटी भी एक तरह से। And if we talk about FRBM Act, Fiscal Responsibility and Budget Management, तो लॉन्गर रन में इसका क्या रोल होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए? व्हाट रोल इट इज प्लेइंग? एफआरबीएम एक तरह का कंप्लायंस है फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ये नहीं रहेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी नॉट अकाउंटेबल टू मैनेजिंग द फिस्कल डेफिसिट, कि वो कितने भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन एफआरबीएम एक्ट आने से इट हैव मैंडेटेड, इट गिवन डायरेक्शन कि आप 3% करिए, कुछ कुछ दिन कुछ साल के बाद आप 0% तक आ जाइए। लेकिन अभी तक पूरा हो नहीं पाया, पूरा नहीं हो नहीं पाया। लेकिन तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, वो उनको बोलना पड़ता है पार्लियामेंट में कि क्यों नहीं हो पाया। अगर एफआरबीएम नहीं रहेगा तो बोलना भी नहीं पड़ेगा, तो इट मेक्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द फिजिकल डेफिसिट। तो लॉन्ग टर्म में फिजिकल प्रूडेंस का जो आता है कॉन्सेप्ट कि आप जस्ट यूज करिए, आप कम करिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ज्यादा करिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसमें हेल्प करता है एफआरबीएम एक्ट 2003 में। हालांकि अभी तक अचीव नहीं हो पाया, लेकिन इट 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 मेक्स द गवर्नमेंट आंसर इन द पार्लियामेंट कि व्हाई इट इज नॉट परफॉर्मिंग। So we can say it is acting as a accountability holder and a balancing tool for the यस, government. यस, वी कैन टेक इन द नेक्स्ट लिंक। It will be completed here only. There are not many articles. This one is covered already. इंडिया कोल एक्सपोर्ट 1.3। So the amount the developing nations will be needing by 2030, $6 trillion. यहाँ पे हमने देखा COP29 will be prioritizing climate finance. अगर एक major takeaway we can say from COP28, what will it be? One major takeaway. COP28 वन मेजर टेके तक एक ही था ओवरऑल, दैट इज इट हैज फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड कि कोल इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। हाँ, तो एक्नॉलेज हिस्ट्री हुआ वाज पहली बार कि एक्नॉलेज फॉसिल पहली बार From फॉसिल फ्यूल fossil नीड्स टू बी कट डाउन। IRDR वी हैव डिस्कस कि IRDR प्रपोज ऑब्लिगेटरी लाइफ एंड हेल्थ कवर इंश्योरेंस इन ग्राम पंचायत अक्रॉस इंडिया, तभी जस्ट भारत, विकसित भारत का बात होता है। और इंडिया में 40 करोड़ पीपल डोंट हैव हेल्थ इंश्योरेंस डिस्पाइट PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन 40 करोड़ पीपल अभी भी नहीं। तो इसका मतलब कि हेल्थ इंश्योरेंस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो अधिकतर परिवार होते हैं उनको पता नहीं होता है हेल्थ इंश्योरेंस जब खर्चा आता है थ्रू CVD या फिर NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तब पता चलता है कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया। तो हेल्थ इंश्योरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस फॉर ऑल मैंडेटरी, IRDA रेगुलेट स्टैट्यूटरी बॉडी, GSFR 2 उसमें, और एक तरह से इट रेगुलेट्स द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, और उनके जो स्टैंडर्ड होते हैं प्रोटोकॉल इट सेट्स। तो दो टाइप का and होता है, जनरल इंश्योरेंस, एक और होता है हेल्थ, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। and we can also say that this step is promoting social justice and also the shared responsibility that is reflected by it. And also IRDAI की vision है by 2047 it will be providing insurance for all, and also 100% cashless treatment भी लेके आया है IRDAI, जहाँ पे कहीं पे भी आप जाएंगे तो किसी भी हॉस्पिटल में you can choose your treatment and you do not have to pay any money. it will help in reducing out of pocket expenditure. यस,
तो यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं एक फ्रेंच बेस्ड डेवलपमेंट एजेंसी का, Proparco, that has been playing important role in India since 2009, and it is aiming um, to strengthen the private sector capabilities of the developing nations. Yes. So ये important role play कर रही है in the climate sector, right? Yes. To increase the accountability of the private sector, कि आपको कैसे अब इन्वेस्ट करें, कोई चाहता नहीं इन्वेस्ट करना क्योंकि मोस्टली इंसेंटिव कम है उसमें, तो इंसेंटिव दिया जाता है कि आप इन्वेस्ट करो इन क्लीनर फ्यूल। मैक्सिमाइज द इनोवेशन फंड इम्पैक्ट बाय फोकसिंग ऑन की गोल। इनोवेशन फंड, उसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, डीप टेक टेक्नोलॉजी में जो इंस्टीट्यूशन अभी आएंगे, इट इज इन, अभी वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर नहीं। एंड यहाँ पे हमारे पास दो टारगेट्स हैं जो कि इस इंक्रीज के जो इनोवेशन फंड इंटरिम बजट में लाया गया, इंक्रीज किया गया है, तो उसके लाइंस पे है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना, एंड टारगेट है $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट को रीच करना, एंड ऑल्सो जो ट्रांजिशन है नेट जीरो के लिए बाय 2070, तो उसमें जो R&D में इंक्रीज है वो हमें हेल्प करेगा। R&D इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू जैसे हम देख सकते हैं EU का बॉर्डर कार्बन टैक्स आया है, तो वैसे ही इंडिया भी अपने लिए सस्टेनेबल मॉडल्स बना सकता है फ्यूचर में, एंड ऑल्सो उन मॉडल्स को कंप्लायंस के लिए हम R&D को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है, PLI, जिससे कि टेक इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को हम प्रमोट कर रहे हैं एंड उसको और भी ज्यादा इंक्लूसिव बना रहे हैं। एंड अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कैसे लेके आएंगे R&D के थ्रू, एंड कमर्शलाइजेशन कैसे सस्टेनेबल वे में हम प्रमोट कर सकते हैं, तो वो इन सब चीजों में हमें हेल्प करेगा। India to become biggest driver of oil demand growth by year 2030. IEF said, International Energy Agency. It is under the OECD. 1973 बाद के बाद में ऑयल क्राइसिस हुआ था, ये आया था IEA। IAEA is different, Atomic Energy Association. The past lamp post on the edge of the river Krishna cast a fresh light on the trade ties in the region in early medieval times. Lamp post. So जो फ्लैग पोल है, इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर Architecture. इन द डेक्कन। रिवर एंड ट्रेड रूट दर्शाता है। इक्विटी कंसर्न डिस्कस्ड। दिस इज आल्सो डिस्कस्ड। Biden sets tighter standard for soot pollution. Soot, तो हम बोल सकते हैं ब्लैक deadly कार्बन। soot, black carbon. It reduces the albedo effect. We discussed yesterday कि albedo effect क्या होता है, कि रिफ्लेक्शन कम कर देता है फ्रॉम द हिमालयन रीजन, आर्टिक एंड अंटार्कटिक। इसलिए डेडली सूट, इट एब्जॉर्ब्स the heat, it also सनलाइट reduces the albedo effect, that is why it intensify the climate change process। और उसको मिटिगेशन करना जरूरी है, तभी कार्बन सूट, डेडली सूट, फ्लाई एश, इस वक्त आप यूज करते हो एसफल्ट मेकिंग में, हॉट टेक्नोलॉजी, कोल्ड मिक्स एसफल्ट रोड बनाने में, या फिर आप कार्बन सूट और जो एसफल्ट है इसको आप एक और जगह यूज करते हो, बायो रेमेडिएशन में यूज करते हो, फिर जो ओपन डंपिंग ऑफ द वेस्ट है इसको ढकने के लिए it is used to cover up the open dumping waste। तो डिफरेंट एरिया, तो दो तरह, तो मिटिगेट हो गया जब हो चुका है पॉल्यूशन, अब एक हो गया कि आप पॉल्यूशन ही नहीं करें, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन एंड की ये बात शॉर्ट लिव्ड है ना, इट इज शॉर्ट लिव्ड ब्लैक कार्बन, यस। थोड़े एग्जिस्ट करते हैं। एंड ये ब्लैक कार्बन कब फॉर्म होता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास में देखे थे, सेशन में, कि व्हेन देयर इज अ नॉन, जब इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट, हाँ ट्रू, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ द फ्यूल, तभी डेडली सूट और ब्लैक कार्बन फॉर्मेशन होता है। जैसे
लाइट इसी के अगर कैंडल लाइट है तो ऊपर के पार्ट ब्लैक कार्बन से फिर काजल लगाते हैं, तो वो वैसे ही होता है। और बीच वाले जो सबसे कंप्लीट बर्निंग कब होता है, जब आपका जो कलर होगा फ्लेम का इट विल बी ब्लू। तो ये डेडली शूट। एंड इसी के लाइंस पे हम बोल सकते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग जो हम कर रहे हैं, क्योंकि व्हीकल से भी हाँ आई थिंक हाँ, डेडली शूट आता है। फॉर एग्जांपल डीजल कार, दैट इज वाई डीजल इज लेस रिफाइंड देन पेट्रोल, इट रिलीजेस डेडली शूट। दैट इज वाई वी आर प्रमोटिंग एथेनॉल ब्लेंडिंग, बिकॉज एथेनॉल के पास कैलोरिफिक वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। तो हाई कैलोरिफिक वैल्यू से अगर मिलाओगे, इट विल बी मिक्सड विद द पेट्रोलियम एंड डीजल, देन ओवरऑल जो फ्यूल होंगे इट विल लीड टू द कंप्लीट कंबशन। तो उसमें डेडली शूट फॉर्मेशन नहीं है। एंड वी कैन ऑल्सो से जो व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड्स हम लेके आ रहे हैं जैसे BS4 BS6, तो वो भी इसी के लाइंस पे ही हैं। ठीक, thank you everyone. We will take up next set of important topics for discussion as per demand of the examination in GS where 1, 2, 3, 4 and options due to Sarkari.